Hello students, welcome to BBBN online classes. So in our previous video session we have just completed the reading and explanation of the chapter Boating with Friends, and we are very much amazed to see the message also as जैसा आप बिहेवियर दूसरों से चाहते हैं आप भी उनके साथ में वैसा ही बिहेव करिए. So this story ends with a beautiful message, and today we are going to discuss about the question answers. Here are some glossary words, some difficult words and their easy meaning. You have to learn it and write it in your notebook. Then we have the question answer. Answer these question with reference to the context. आपको टेक्स्ट दिया गया है, उसी के रेफरेंस के थ्रू आपको इनके आंसर्स देने हैं जो क्वेश्चंस हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आई डिडंट थिंक ही हैड द प्लग टू डू इट. डिड यू? मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी करेज है कि वो इस काम को कर पाएगा. लगता है तुम्हें कि वो कर पाएगा? सो फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द स्पीकर एंड द लिसनर. सो हियर Harry is the speaker and George is the listener. Then the second question is who is the he referred to. यहाँ पर he जो word है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? तो he यहाँ पे यूज़ हुआ है Zerim के लिए. What did he have the pluck to do it? Zerim had the pluck to jump into the freezing water for a swim. तो ज़ेरिम क्या है, उसमें किस चीज़ का प्लक है, यानी कि करेज है. क्या कर सकता है वो आराम से उस फ्रीजिंग कोल्ड में भी नदी में गिर के स्विमिंग कर सकता है. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डज दिस रिवील्स अबाउट द स्पीकर्स ओपिनियन. ये जो आपने सेंटेंस पढ़ा इसमें स्पीकर के ओपिनियन के बारे में आपको क्या पता चलता है. So this reveals that Harry did not have much confidence in Zerim earlier, but now that he had jumped into the freezing water, Harry showed some admiration for Zerim's courage. यानी कि इस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि हैरी को पहले ज़ेरिम की करेज पे बिलीव नहीं था, बट जैसे ही वो क्या करता है, वाटर में जंप करता है, तो उसे ये यकीन हो जाता है कि वो वाकई में करेजियस है. Then we have the second question. What a heartless sneak you are. Whose words are these? So these are Zerim's words. To whom are they spoken? They spoken to George. When he said so? When they were in the boat. Okay. Second question is why is the person being called a heartless maniac? Heartless maniac क्यों कहा गया है? George is being called a heartless maniac because he was laughing loudly when Zerim, in his hurry to put on his shirt, accidentally threw it into the freezing water. इसलिए कहा गया है क्योंकि एक इंसान जो है, जो फ्रीज़ हो रहा है, उसको ठंड लग रही है, उस टाइम पे वो शर्ट पहनने की कोशिश कर रहा है और हरी में क्या होता है, उसकी शर्ट नीचे गिर जाती है और आपको उस पर दया आने की बजाय आप उस पर हंस रहे हैं, इसीलिए उसको हर्टलेस कहा गया है. थर्ड वन इज़ व्हाट आर द स्पीकर्स फीलिंग एट दिस मोमेंट. इस टाइम पे स्पीकर की फीलिंग क्या है? The speaker is very annoyed and losing his temper at the laughing Zerim. तो ऑब्वियसली हम पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन में हंसता है तो हमें गुस्सा आना लाजमी है, तो ऐसा ही उसके साथ में हुआ है स्पीकर के साथ में. What does the speaker do shortly after saying this? क्या किया उसने? Zerim manages to get the shirt onto the boat's hook and haul it out of the water. वो कैसे भी करके बोट के हुक के थ्रू जो है उस शर्ट को बाहर निकालता है. Then we have answer these question. इन क्वेश्चन को हमें क्या करना है, आंसर करना है according to our chapter. Where were the three friends and what time of day was it? The three friends were boating on the Thames and it was 6 in the morning. Why do you think Zerim and George shared some not so true stories?
आपको क्यों लगता है कि जैरम और जॉर्ज जब एक दूसरे से बात कर रहे थे, अपनी लाइफ को शेयर कर रहे थे, अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है, तो उसमें से कुछ सच नहीं थे, आपको क्यों लगता है? सो जैरम एंड जॉर्ज शेयर सम नॉट सो ट्रू स्टोरीज टू शो ऑफ देयर ब्रेवरी एंड करेज टू ईच अदर। ठीक है, यानी कि वो अपनी ब्रेवरी और करेज को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके उन लोगों को शो ऑफ कर रहे थे एक दूसरे को। वॉट हैड द थ्री प्लान टू डू द प्रीवियस नाइट? क्या डिसाइड किया था उन्होंने? द थ्री ऑफ देम had planned to get up early in the morning and leap into the river for a long swim. उन दोनों ने पहले रात को डिसाइड किया था कि वो सुबह जल्दी उठेंगे, अपनी ब्लैंकेट से निकलेंगे और रिवर में छलांग लगा के एक लॉन्ग स्विम जो है वो इंजॉय करेंगे। What motivated Jerem to pretend to be brave? ठीक है, ओके। सो जेरम जो है उसको किस चीज़ ने उसको व्हाट मोटिवेटेड जेरम टू प्रिटेंड टू बी ब्रेव? कौन सी चीज़ है जो उसको मोटिवेट करती है कि वो अपने आप को ब्रेव दिखाए? ओके, जेरम pretended to be brave because going for the early morning swim was his idea in the first place and he desperately want to show his friends also that he can jump in the freezing water. ओके, सो सबसे पहले तो चीज़ उसको मोटिवेट की कि उसी का ये आइडिया था, और दूसरी चीज़ कि कोई नहीं करेगा तो भाई उसको तो करना ही पड़ेगा, वरना लोग उसको स्टूपिड बोलेंगे कि कितना हाफ माइंड होकर ये वाला डिसीजन जो है वो उसने लिया। What did George find very funny? जॉर्ज जो है उसको क्या चीज़ जो थी वो बहुत फ़नी लगी। सो जॉर्ज जो है वो क्या करता है, जेरम पे हंसता है। तो जेरम who was cold and soaking wet got back to the boat and was in a hurry to put on his shirt. However, in his haste, he accidentally threw it into water. This made George burst into laughter as he found it extremely funny. जैसे ही जॉर्ज जो है वो बोट पे आता है तो क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील होती है कि जॉर्ज ने ये वाला जो काम किया है वो बहुत ही स्टुपिडिटी वाला काम था, और अब जब वो उसको कांपते हुए देखता है तो उसको सारी सिचुएशन बहुत फ़नी लगती है। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट वाज द प्रीशियस मोमेंट? The precious moment was the one in which Jerem realized that it was not his shirt, but George, which had fallen into the water. Jerem had mistaken it for his in the hurry to get dressed. Precious moment तब होता है जब जेरम को ये रियलाइज़ होता है कि ये शर्ट उसकी नहीं है बल्कि जॉर्ज की है। What did Harry find really amusing? When Jerem tried to make George see the fun of the entire episode with the shirt, he could not. George was very dense at the first. ओके, तो हैरी जो है उसको अम्यूजिंग क्या लगता है कि पहले तो जॉर्ज जो है वो जेरम पर हंस रहा होता है और उसके बाद में जेरम जो है वो जॉर्ज पे हंस रहा होता है। तो ये जो शर्ट वाला सारा इंसिडेंस जो होता है ना, ये हैरी को बड़ा ही अम्यूजिंग लगता है। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स दैट वी हैव जस्ट completed. In our next session we will start a new chapter. Thank you.